Welcome everyone to a very special News Laundry Live. We're going to be in conversation with Abhijit Dipke and talk about a lot of things that I have been very curious about. As they say on TV news, so much hua hai, kitna kuch kiya hai. So we'll be talking about all that with Abhijit. Before we begin, need I remind you to please subscribe, pay to keep news free. If there's anything we've learned from the past month, it is that now more than ever, you need an independent media. You need journalists committed to facts and truth and consistency. And we've been trying to do that for a very long time. So please support us. Please subscribe to News Laundry. With that, I would like to welcome Abhijit. Hi, Abhijit. So nice to meet you again. Last time Good. we spoke, I was in the US. तब I मैं was I was exactly, that was going to be my first question. Last time we spoke, you were in Boston. या CJP के हैंडल को डिसेबल कर दिया था. You weren't able to मैं log into एक it. चीज बोलूं उसके पहले जस्ट वन रिक्वेस्ट आई वांट टू मेक टू ऑल द व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री। एक महीने में जैसे मनीषा कह रही थी कि सबसे बड़ा जो चीज हमने सीखा है दैट इज वी नीड इंडिपेंडेंट मीडिया। एक महीने तक इस प्रोटेस्ट को पूरा ब्लैकआउट करके रखा था, मेनस्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल भी कवरेज नहीं दिया हुआ था। जब थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ तब ये लोग आए, उसमें भी बदनाम करने के लिए आए, एंड दैट इज व्हाई प्लेटफॉर्म्स लाइक न्यूज लॉन्ड्री आर मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। सो प्लीज प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डू सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री। और इसके लिए मुझे कुछ बोला नहीं गया था, बट मैंने देखा है यही वो मीडिया चैनल्स थे जो स्टूडेंट्स की आवाज रख रहे थे, यही वो लोग थे जो बार बार आ रहे थे, स्टूडेंट्स को कवर कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि कोई तो आ रहा है हमें देखने के लिए। Hmm. Yeah, in fact, we were there right when you landed, या and then we were consistently going there, and we spoke to so many students. So, yes, now more than ever, you need an independent media that actually spoke about the issue rather than the controversies that it was giving. And so, this actually gives me this thing, actually, why don't we start with this? News Laundry reporters covered it right from the beginning. या And there was a time, peak Garmi thi, before Sonam came and sat. या Even after he sat on his fast, there was a lull. It was extremely hot, so there weren't enough crowds. Um, the left organizations were keeping it together. A lot of them were there and making sure. You had a bunch of supportive people who were staying with you through the night. But there were times when the crowds were very thin, and even I, as editor, was thinking, ki, what's going to be the end game for this? Kya log aayenge, kya nahi aayenge? What was going through your mind then? Like, were you like panicking at some point? Ki shit. No, I was not panicking at all to be honest. But yeah, the thing that you had in mind, वो भी हमारे हमारे दिमाग में भी वही चल रहा था। Like कुछ होगा इस प्रोटेस्ट से या नहीं होगा, because when I came back from the US तो मेरे दिमाग में कहीं पर भी ये नहीं था कि हजारों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग हो जाएंगे। I had nothing of that sort in my mind. I was very clear about one thing, अगर लोग नहीं भी आते, we have to put up a fight. जितने भी लोग आ रहे, 10 आ रहे, 20 आ रहे, 40 आ रहे, जो भी लोग आएंगे, we are going to put up a fight, and I think that was more necessary to put up a fight. Hmm. बाकी कंक्लूजन क्या होगा इसका तो मतलब यार मुझे आखिरी तक पता नहीं था। इवन ऑन द नाइट, ऑन द ईव ऑफ द रेजिग्नेशन, तब भी हमारी टीम की बात यही चल रही थी कि भाई इसका करना क्या, आप कब तक बैठे रहना है, लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू डू। और मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं ना, 15 अगस्त यहीं पर मना लेते हैं, यहीं पर झंडा फहरा देंगे, तिरंगा फहरा देंगे। अब Hmm. इतना लंबा बैठे तो थोड़ा और लंबा बैठ जाते। और वही था मतलब, because I was sleeping there every night, and every night I used to meet people at 1 a.m. and even in the morning at 7 a.m. Right immediately after waking up, I used to meet people. I used to greet them. I used to thank them for being there. तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई, वो ये थी कि हम जैसे जितना लंबा बैठ रहे हैं ना, उतना लोगों को भरोसा हो रहा है कि नहीं यार ये लंबा संघर्ष करने के लिए तैयार, दे आर रेडी टू फाइट द लॉन्ग बैटल, Hmm. एंड दे आर नॉट गोइंग टू लीव द फील्ड। तो उसकी वजह से जो देश भर से लोग आ रहे थे, पहले स्मॉल पॉकेट्स में आ रहे थे, बिहार से आ रहे थे, यूपी से आ रहे थे, हरियाणा से आ रहे थे, स्मॉल पॉकेट्स में लोग आ रहे थे, बट कॉन्स्टेंटली आ रहे थे। और हर रोज मुझे नए लोग दिख रहे थे, Hmm. एंड दैट्स व्हाट मोटिवेटेड मी कि नहीं यार, कम लोग आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन लोग आ रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट इज समथिंग दैट kept us going। And so basically you were thinking कि डटे रहना है, चाहे 4 लोग 5 लोग 40 हो, हम डटे रहेंगे. करेंगे। And how much did A.R. Rahman songs help you in डटे रहना? Because I think one big योगदान is स्वदेश and रंग दे बसंती to this. मेरा थोड़ा पर्सनल बायस्ड है, वो मैं अपना प्रोपेगेंडा कर रहा था, बिकॉज माँ तुझे सलाम इज वन सॉन्ग Hmm. दैट आई यूज्ड टू वॉच एवरी मॉर्निंग, बीट रिपब्लिक डे, बीट इंडिपेंडेंस डे, जब भी कुछ होता है
Hmm. आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे विथ माँ तुझे Maa Tujhe सलाम एंड Salam. व्हेनेवर आई लिसन टू दैट सॉन्ग मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं एवरी सिंगल टाइम एवर सिंस आई वाज़ अ चाइल्ड Hmm. बिकॉज़ उसका जो फ़िल्मोग्राफी भी था इट वाज़ सो ब्यूटीफुल। इंडिया के हर स्टेट के लोग दिखा रहे हैं और उसमें फिर सारे स लोग मिलकर एक बड़ा-सा तिरंगा इंडिया के मैप में ले लेते हैं। सो बचपन से it really stuck with me that song. Hmm. And then while growing up, Swades has always been my favorite movie. Hmm. इनफैक्ट मैं यूएस में भी था तो जब मैं मेरी सिस्टर को विजिट करता था आई यूज्ड टू प्ले स्वदेश ऑन नेटफ्लिक्स एंड माय सिस्टर वाज लाइक मत प्ले करना सेंटी हो जाते हैं लोग घर जाने का मन करता है। तो मैंने बोला नहीं यार मुझे पसंद है ये मूवी देखना। तो स्वदेश आई ऑलवेज यूज्ड टू रीवॉच। अब तक मैंने 1000 टाइम्स तो देख ही ली होगी स्वदेश। बिट्स एंड पीसेस में कभी हो कभी कोई फेवरेट सीन चला देता हूँ जहाँ पर वो छोटा बच्चा पानी का ग्लास देता है या वो दशहरे वाला सीन है। Hmm. बिट्स एंड पीसेस में आई ऑलवेज यूज्ड टू गो बैक टू स्वदेश व्हेनेवर आई यूज्ड टू मिस इंडिया। और इंडिया में रहता था तो भी लाइक स्वदेश इज माय गो टू मूवी एंड रंग दे बसंत यार किसकी Rang De फेवरेट Basanti. नहीं है। All the reels that were coming out were Swades or Rang De Basanti यस। songs. I think that really energized. I think did you feel upset that A.R. Rahman didn't come out and openly support you No, guys? not He at did, all. right? He did put out a I did statement. not get disappointed Hmm. at all. I mean, A.R. Rahman has given so much to this country. Hmm. और उनको भी हेट मिला ही यार। उनको भी कहाँ छोड़ा है। जिस इंसान ने मतलब माँ तुझे सलाम जैसा सॉन्ग दिया है इस देश को, ऑस्कर दिया है, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा है। सो एक्चुअली आई वाज काइंड ऑफ गिविंग अ ट्रिब्यूट टू ए.आर. रहमान, शाहरुख खान फॉर स्वदेश Hmm. एंड आमिर खान तो आप पहचानते नहीं सोनम वांगचुक को हाँ, बट उन्होंने स्टिल बोला कि वो सोनम वांगचुक या पे बेस्ड ही नहीं बट था। इट वाज आल्सो अ ट्रिब्यूट टू रंग दे बसंती बिकॉज़ वो एक मूवीज़ थी जिसकी वज़ह से मतलब आपकी जनरेशन और हमारी आई थिंक वी बोथ आर ऑफ द सेम एज थोड़ा 2-3 You're साल millennial actually. या Let's वी आर clear this up मिलेनियल for everyone. You're not Gen Z, you're millennial. You're my आई generation. टोटली एग्री तो हम मिलेनियल्स के ऊपर तो यू नो दैट हमारे ऊपर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इन सारी मूवीज़ का एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक हम लोग थोड़े ज़्यादा ये होते कि नहीं यार सवाल करने चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए। Yeah. रंग दे बसंती का वो डायलॉग था कि अगर कुछ करना है तो या तो जो कुछ हो रहा है उसे बर्दाश्त करते जाओ या फिर हिम्मत उठाओ उसे बदलने की। सो दोज़ वर द कोई भी काइंड ऑफ कंट्री परफेक्ट नहीं होती है, कोई उसको भी कंट्री परफेक्ट करना परफेक्ट होता है। सिद्धार्थ का जो डायलॉग था। Actually, we've grown up on that tradition of the या 2000s movies, which was questioning politicians यस and a very aggressive way of, questioning. एब्सोल्युटली So, actually, Abhijit, I want to take this moment to dissect the movement with you because so many pieces have been written about it मैं from भी डायसेक्ट कर outside. रहा हूँ। So, I want to know from you, various aspects of this movement. But before we do that, I want to just ask you one thing to begin with. Like I said, when last we spoke, you were in Boston. CJPK page को disable कर दिया था. You were unable to log into it. You were getting death threats. Your family was very worried for you. I remember asking you that, Insta से कुछ होता नहीं है, India में ground में ही होता है. And you were like, हाँ, वो भी करेंगे, ground भी करेंगे. At that point, I don't think you were thinking of what has happened. And your life in the last 2 months has it's been like one thing after the other, पूरा from the हो meme चुका है। page to getting the first resignation of a minister in the Modi years under public pressure. I mean, how overwhelmed are you? Have you had a moment to sit and even think कि ये हुआ क्या है मेरे साथ? And do you think कभी कि यार shit, what did I get into? Like what's happening to me? ये हुआ ना लाइक मुझे टाइम तो नहीं मिला है ऑनेस्टली प्रोसेस करने का। अभी भी मैं घर पर आ चुका हूँ। मैं सोच रहा था घर पर जाकर तो आराम मिलेगा। बट माय मॉम एंड डैड आर सच वो बिना मिले किसी को जाने नहीं देते। तो कितने भी लोग सुबह से खड़े हैं दे आर लाइक मिल जाकर। तू मना हाँ, क्यों कर रहा है? मैंने बोला मैं मना संस्कारी नहीं कर बच्चा. रहा। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं आपका बच्चा हूँ, आप थोड़ी मेरी हेल्थ की फ़िक्र करिए। कहते नहीं वो ठीक है, लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, सो घर वाले मुझे लोगों से मिला रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं, तो वो सब चल रहा है। सो आई डिडन्ट गेट द टाइम टू प्रोसेस एक्चुअली। बट जिस दिन रेज़िग्नेशन हुआ था, आई वाज़ जस्ट देयर ऑन द स्टेज फॉर 30 मिनट्स। रेज़िग्नेशन हुआ, आई जस्ट टूक दैट मोमेंट इन एंड आई वाज़ लाइक यस फाइनली वी डिड इट, फाइनली वी डिड इट। वो Hmm. 30 मिनट्स के बाद आई जस्ट वेंट बैक टू माय फ्रेंड्स प्लेस एंड आई Hmm. वाज़ लाइक आई एम डन। अभी मुझे सोना है जाकर। आई जस्ट वेंट टू माय फ्रेंड्स प्लेस एंड आई टूक अ गुड लॉन्ग नैप You बिकॉज़ had कहीं typhoid also. You were diagnosed with आई typhoid. हैड टाइफाइड आल्सो या सो दैट वाज़ आल्सो देयर एंड मुझे कहीं न कहीं थोड़ा डिटैच करना था फॉर सम टाइम क्योंकि मुझे पता था अभी लोग करेंगे क्या? Hmm. कंधे पर उठा लेंगे, हीरो बना देंगे एंड लग सकता है मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, लग सकता है कि मैं डायलॉग बाज़ी कर रहा हूँ बट आई डोंट लाइक दैट पर्सनली एट ऑल। Hmm. मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर कोई तारीफ़ कर रहा है या कोई ज़्यादा मतलब बढ़ा-चढ़ा रहा है, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल Hmm. क्योंकि मैं थोड़ा आई डोंट नो व्हाट इज़ इट बट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है उस चीज़ से। क्योंकि Hmm. मैं खुद भी वैसा किसी की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता हूँ अनलेस एंड अंटिल दैट पर्सन रियली मैटर्स टू मी। Hmm.
मेरे पर्सनल लाइफ में भी मेरे लोग कहते हैं यार तू ना हमारे बारे में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं बोलता है। मैं बोलूँगा तुम्हारे मुँह पर क्यों बोलूँगा? Hmm. सो आई डोंट लाइक दैट थिंग। और एक हीरो वर्शिपिंग तो पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, सेलिब्रिटीज़ हो, So you बिल्कुल left that quickly because there was criticism around that. That why did he just leave? You left that quickly because a you said that you were tired, but अ, also because you didn't want to be मेरे हाथ the. में कैनुला लगा हुआ था एंड पीपल वर जस्ट कमिंग एंड होल्डिंग माय हैंड, तो वो कैनुला जो था वो आउट हो चुका था। Hmm. एंड माय हैंड वाज़ इन लॉट ऑफ पेन और पूरा स्वेल हो चुका था। तो उसकी वजह से आई वाज़ लाइक मैं कैनुला के साथ तो खड़ा नहीं रह सकता, तो कैनुला मैंने वहीं पर स्टेज पर निकाल लिया एंड Hmm. देन आई अप्लाइड सम, वो गरम पट्टी जो होती है वो लगा दी मैंने। बट डिस्पाइट ऑफ दैट इट वाज़ हर्टिंग अ लॉट बिकॉज़ पीपल वर जस्ट कमिंग एंड ग्रैबिंग द हैंड। Hmm. तो मैं सोचा घर चला जाता हूँ एंड आई जस्ट टेक सम मोमेंट फॉर माय सेल्फ और थोड़ा मतलब डिटैच कर लेता हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट दोज़ थिंग्स टू गेट इंटू माय हेड कि यार एक बड़े मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ले लिया है या क्रांति ला दी है। वो Hmm. दिमाग में जाने नहीं देना था बिकॉज़ इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिटैच फ्रॉम दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक बार वो दिमाग में घर चा चला कर जाए तो इट कैन ruin द बेस्ट ऑफ द माइंड्स। That's a very mature way of looking at things. So, three main things for me in this movement, turning points for me. One, I want to understand from you. Like I said in the beginning, crowds were thin, पर आपने decide कर दिया कि आप डटे रहोगे. But somewhere towards when Sonam Wangchuk puts out a message, and you guys say that he's lost weight, Yeah. something changes in the sentiment in the country. Yeah. I think there's a real fear that he may die, and Yeah. then crowds start trickling in. For you, what was the turning point from it being, a bit of a damn squib to like, wow, we're getting so many people? Like, how do you assess it? ये कैसे हुआ ये trajectory? For me, there were two turning points. One was Sonam sir's hunger strike. On the 15th day of his hunger strike, I think he just was going to the washroom and he was kind of collapsing, so we just hold him. और उसके बाद उनका हेल्थ थोड़ा खराब हो रहा था। Even on the stage, he was just passing out. Hmm. And that is where I was really scared for his life. I was like, sir, please end your hunger strike. We will continue the protest, but you please end your hunger strike. We cannot afford to lose you. Hmm. And I think उसके कुछ visuals भी viral हो गए. And that is when this giant nation finally woke up from its deep, deep sleep. So Hmm. Sonam sir actually he put his life on the line and have awakened the nation. And I don't think without his sacrifice this movement would have been successful. And I don't know what that man is made of यार। मतलब 20 दिन बाद भी मैं सुबह उठ के पूछा सर आर यू फाइन, कहते टाइगर अभी जिंदा है। हमने कहाँ से आ रही है एनर्जी? Whose idea was it to get him? What did you personally reach out to him, or did he come to you? Like, how did it? नहीं, ये तो Whose सब call? एक्सीडेंटली हो गया। सोनम सर को जो लद्दाख के एलजीए उन्होंने बुलाया था टू कॉशन हिम अबाउट सीजेपी कि आप लोग, उन्होंने शायद से कुछ बोला था कि आई एम ऑनररी कॉकरोच, तो उसके Honorary बाद cockroach. डोंट गेट अलाइन विद दिस पीपल आर फंडेड फ्रॉम फॉरेन, पाकिस्तान के लिंक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके बाद सोनम सर ने एक पोस्ट डाला था कि इफ अभिजीत कन्विंसेस मी दैट हिज फॉलोअर्स आर फ्रॉम इंडिया, आई माइट लाइक टू टॉक टू हिम। तो उसके बाद मैंने सोनम सर की पेज पर कमेंट किया था कि सर आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू एंड आई कैन शेयर यू द मेट्रिक्स ऑफ द पेज जहां पर हमारे फॉलोअर्स है 94.7% इंडिया से। Hmm. And that is how we got in touch and one thing led to another, and then he was like okay I want to come to the protest and I was like okay, who else than Sonu Wangchuk, there could be no other better face than him. Hmm. So for you, the turning point was a Sonam Wangchuk's deteriorating health. That is what really got people feeling कि shit अब Yeah. आ जाते हैं इतने और old. यही था ना लोगों में कि एक बंदा वहां पर अपनी जान दांव पर लगा रहा है, इतने दिनों से भूखा और हम घर पर बैठे हुए हैं। Hmm. So I think that really moved people. And the other biggest turning point was where the movement got bigger than me, sir, Sonam sir, or CJP, was the Lathi charge on 20th. Hmm. The brutal Lathi charge on the 20th really kind of shaken the country Hmm. because nobody was expecting that the police might actually use pellet guns on students. Nobody was expecting so much bloodshed on the streets of Jantar Mantar where students have been protesting for 1 month peacefully. So Hmm. what happened was on Jantar Mantar on 20th was actually very shameful, but it was also a wake up call for the country, and the country did wake up and they did took the movement in their hand. And we exactly wanted that. We never wanted this movement limited to me, Sonam sir, or just CJP. We wanted it to be a people's movement, and that is exactly what it became after the Lathi charge. In fact, I want to talk about the day of the march because it's very interesting. I was there for the protest march, the Sansad Chalo march. You're right. Students were very surprised. Some of these students were protesting for the first time. So for Yeah, them, yeah. पुलिस मार क्यों Majority रही है? of them. आधों को तो यही Majority समझ of नहीं आ रहा था कि them. पुलिस हमें क्यों मार रही है. Yeah, Like that sentiment you could feel everyone कि भाई हमको क्यों मार रहे हो? yeah, There's an innocence to that. yeah, But then the protest site gets cleared
completely. And I was like, okay, now it's over. This is it. Protest khatam ho gaya, movement khatam ho gaya. Why do you think it tripled after that? Like, after that, I think you saw your biggest crowds, which was to me the most surprising thing. Actually, what happened on the night of 20th, nobody knows. Hmm. सारे जर्नलिस्ट चले गए थे, सारे लोग भी चले गए थे, एंड इवन आई वाज काइंड ऑफ ब्रोकन डाउन। बिकॉज आई वाज लाइक यार 1 महीने तक इस मूवमेंट को बनाए रखा, जब 200-300 लोग आते थे तब भी हिले नहीं, और वहां से बिल्ड करा इस मूवमेंट को, और अब जाकर कहीं पर पूरा देश आया था, और जिस दिन पूरा देश आया उसी दिन सारे लोग वापस चले गए, एंड फॉर मी दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। तो सारे लोग जाने के बाद आई वाज देयर अलोन। तो मैं केरला हाउस के सामने थोड़ा खड़ा था मैं, तो वहाँ के वॉचमैन ने भी मुझे बोल दिया यहाँ पर खड़ा मत रहो, आप साइड में खड़े हो जाओ। Hmm. इट वाज ऑल डार्क, इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी इन लोगों ने, तो मैं साइड में जाकर फुटपाथ पर नीचे बैठ गया, मैं जो पेवमेंट होता है। आई सैट ऑन द पेवमेंट अलोन, आई जस्ट पुट माई हेड डाउन एंड आई वाज जस्ट लाइक क्या करूँ मैं अब। Hmm. Everybody has left, the people have left, the media have left, and I was just there sitting alone in complete darkness, कोई था नहीं, and I was just thinking करना क्या चाहिए मुझे। मुझे खुद को नहीं पता था उस वक्त करना क्या चाहिए, क्योंकि मन से आवाज एक भी आ रही थी, अब कोई है नहीं तो तू अकेला बैठकर क्या करेगा। Hmm. एंड दूसरा ये भी आ रहा था, अगर मैं यहाँ से चला गया तो एक लाइफ टाइम टैग रहेगा ये भाग गया प्रोटेस्ट साइट से। तो मैं वही सोच रहा था। फिर मेरे साथ का एक टीम मेंबर है, वो आया, वो कहता है कि भैया घर चलो, Hmm. आपने कर लिया, आपसे जितना हो सकता था आपने कर लिया, और अभी लोग भी चले गए, कोई है नहीं यहाँ पर, नो बडी विल ब्लेम यू, वी नो वॉट यू हैव डन, वी नो हाउ मच रिस्क एंड एफर्ट्स यू हैव पुट इन, आप प्लीज घर चलो अब। एंड ही वॉज काइंड ऑफ कन्विंसिंग मी टू लीव द प्रोटेस्ट साइट एंड जस्ट गो होम एंड रेस्ट। Hmm. तो मैंने बोला यार नहीं, अगर मुझे यहाँ से उठना है, सो द पुलिस विल हैव टू ड्रैग मी आउट फ्रॉम हियर, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस जंतर मंतर एट ऑल। Hmm. तो मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। तो कहते कि 10 बज गए, अब क्या करोगे। मैंने बोला बैठे रहता हूँ यार, देखता हूँ मैं क्या होता है। कहते कोई नहीं है, क्या करोगे बैठकर। Hmm. मैंने बोला कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे। एंड सडनली क्या हुआ ना, कुछ लोग आए जिनको पता नहीं था मैं वहां पर बैठा हूँ, Hmm. एंड दे सडनली स्पॉटेड मी डार्कनेस में कि अरे अभिजीत बैठा हुआ है। और वो सारे लोग एक एक करके मेरे पास, कुछ 20-25 लोग ही थे, वो 20-25 लोग ही मेरे अराउंड सर्कल बनाकर बैठ गए। और उसमें भी वो लोग बोल रहे थे कि नहीं भैया, जो भी है जैसा भी है, वॉट एवर यू से वी विल डू इट, वी विल डू इट। तो मैंने बोला यार आप लोग क्या क्या कर रहे हो आप लोग। मैंने बोला हो गया सब खत्म। तो कहते नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर हियर इट्स नॉट ओवर, एंड इफ यू वांट अस टू सिट वी आर रेडी टू सिट अगेन। Hmm. तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि 20-25 लोगों के साथ भी क्या होगा। बट देन पीपल वर sitting there, they were just looking at me and I had no answers to them. I can see they were staring at me Hmm. with too many questions in their eyes. And I was ashamed. I felt that I let this movement down. Hmm. I felt ashamed that I failed. And I had a bigger guilt that public आ चुकी थी but मैं fail हो चुका हूँ। Hmm. And I could see that in the eyes of the people. ऊपर से वो कह रहे थे कि नहीं आप लड़े हो और आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, but I could see the questions they had in their mind. एंड दैट इज व्हेन आई जस्ट काइंड ऑफ डिसाइडेड कि बैठा रहता हूँ मैं। 25 लोग हैं, 25 लोगों के साथ में मैं बैठा रहूंगा। अगर पुलिस को उठाना है तो पुलिस को मुझे उठाना ही पड़ेगा, मैं खुद नहीं जाऊंगा यहाँ से। Hmm. एंड दैट इज व्हेन समथिंग मैजिकल हैपेंड। 25 लोग मेरे से बात कर रहे थे एंड दे वर काइंड ऑफ थोड़ा मुझे लाइटन अप करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं उनको भी डांट दिया। उन्होंने यार प्लीज डोंट जोक नाउ, जो ब्रुटैलिटी हुई आप लोगों को समझ में आ रहा है आज क्या हुआ है, बच्चे पीटे गए हैं। बट देवर लाइक नहीं भैया हम तो बस आपको लाइटन अप करने को ट्राई कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट, जस्ट लीव मी अलोन फॉर अ व्हाइल। तो वो लोग मेरे सामने चुपचाप बैठे रहे, मैं एकदम शांति से अपना सर पकड़ के बैठा रहा कि करना क्या है भाई। एंड दैट इज व्हेन आई सडनली स्टार्टेड हियरिंग द स्लोगन्स, Hmm. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एंड दोज वर कमिंग फ्रॉम फार अफार, लाइक फ्रॉम वेरी फार। बैरिकेड्स के उस साइड से आ रहे थे, तो पब्लिक जंतर मंतर के बाहर रुकी हुई थी। तो Hmm. वो थोड़े एकदम से सॉफ्ट टोन में, सॉफ्ट वॉइसेस में जितनी भी मेरे कानों पर आवाज पड़ रही थी स्लोगन्स की, वो पड़ी। I realized people are waiting, and Hmm. that means people are not going to leave. People wants to come back at Jantar Mantar, Hmm. and that is when the 25 people became 100 people. Hmm. And And so you guys set up the stage again. with those You 100 sat there again. people, with those 100 people, we just marched towards the stage. Hmm. और पुलिस का ये था, पुलिस भी वहां पर प्रेजेंट नहीं थी।
Because even I was like, okay, it's over. मुझे For लगा me, ये it was घर चला very clear. जाएगा, अब ये तो रुकेगा नहीं। Till then, our reporter sent बट me 11 o'clock, 12 o'clock की, and I was like, हैं, ये क्या हो रहा है? It's bad. डीसीपी भी आया था, डीसीपी कहता है कर लिया बेटा जो करना था। बेटा तो Hmm. नहीं कहा उन्होंने, Hmm. ऐसे एकदम कॉन्डिसेंडिंग टोन में कि कर लिया जो करना था, अब घर चले जाओ। जाओ घर, अब चले जाओ घर। तो मैंने बोला घर तो नहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ, आपको खींच के ले जाना पड़ेगा। हाँ, घर तो नहीं जा रहा हूँ मैं। तो फिर वो And so then people just started pouring in. एक बार मैं स्टेज पर चला गया, उसके बाद मैंने बैरिकेड्स पर लोगों को भेजने बोल दिया, बोला चले जाओ बैरिकेड्स पर और सारे लोगों को अंदर लेकर आ जाओ। Hmm. एंड विदिन 15 मिनट्स Hmm. जंतर मंतर पूरा भर गया। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, इट वाज रेनिंग, Hmm. इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे, दे डिडंट नो आई वाज देयर, बट दिस दे स्टिल केम एट जंतर मंतर एंड दे स्टार्टेड रेजिंग द स्लोगन्स अगेन, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। I think that was really something to me. I think that's one of the most. I couldn't make sense of it as a journalist. That what happened? Like, how come people just came एंड back, stuck around? एंड मेरे लिए भी ऐसा था कि शिट ये क्या हो गया, वी आर बैक अगेन। Hmm. और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कहीं से भी, कहीं से But नहीं। Abhijit, there was one main criticism for you that on the day of the march, you were not seen with the people. Now, this is an expectation we have of our leaders. This is how we see leadership. Now, whether you call yourself a leader or not, you are the face of CJP. So there was this thing कि यार लोग लाठी खा रहे थे, but अभिजीत ने लाठी नहीं खाई. You were on a van. Why were you not down with people in front of them? ओके, सो इसमें दो What तीन happened? Like, what या really happened that day? Why did you not decide कि चलो let me go down, let me just lead it, let me just stand in front? नहीं, इसमें दो तीन चीजें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज गोइंग टू मार्च विद द पीपल, Hmm. लेकिन बिकॉज सोनम सर को उठा लिया था तो तब से मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ था। Hmm. और हंगर स्ट्राइक पर मैं बैठा हूँ तो मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं पता है एनर्जी कंजर्व करनी होती है। तो 2 दिन मैं पूरा क्राउड से एंगेज कर रहा था, मैं लोगों से मिल रहा था। सो बाय द थर्ड डे आई वाज़ वेरी लो ऑन एनर्जी। सुबह मॉर्निंग को मैं लोगों को एड्रेस करने गया, जो बैरिकेड की बैक साइड पर थे, स्टेज के बैक साइड पर। Hmm. तो उनको एड्रेस करते वक़्त आई काइंड ऑफ फेल्ट डिज़ी, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा-सा चक्कर आ गया। तो उसके बाद मैं स्टेज पर आ गया, आई जस्ट स्लेप्ट फॉर लाइक 30 मिनट्स और सो, जहाँ पर मैं थोड़ा पानी पी लिया उसके बाद। और उसके बाद डिसाइड हुआ मार्च करना है। तो मैं तो ज़मीन पर ही करने वाला था, लाइक आई आई वाज़ गोइंग टू मार्च, बट माय टीम वाज़ लाइक, "यू आर नॉट इन अ स्टेट वेयर यू कैन वॉक, Hmm. एंड इफ यू वॉक, पीपल विल जस्ट गैदर अराउंड यू, दे विल जस्ट हॉप ऑन यू, Hmm. तो यू जस्ट गेट ऑन अ ट्रक, इट विल बी मच ईज़ियर टू मैनेज द क्राउड। अगर तुम ज़मीन पर रहोगे तो लोगों को पता नहीं रहेगा डायरेक्शन कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है।" Hmm. सो दैट वाज़ द डिसीजन मेड बाय द टीम हू इंसिस्टेड मी टू बी ऑन द ट्रक। तो मैं जंतर मंतर पर ही था। आई वाज़ विद द क्राउड, इन फैक्ट आई वाज़ काइंड ऑफ टेकिंग देम फॉरवर्ड। Hmm. इसमें जो हमारे बाकी स्पोक्सपर्सन है, आफरीन वाज़ देयर, आफरीन को पुलिस ने पीटा है। अ फीमेल स्पोक्सपर्सन ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, आफरीन, वाज़ Hmm. बीटन अप बाय मेल पुलिस ऑफिसर्स। Hmm. वैष्णवी गौर वाज़ आल्सो प्रेजेंट देयर, वो भी वहाँ पर थी, रत्ना भी वहाँ पर थी। दीपक बालियान वाज़ आल्सो देयर विथ मी। Hmm. Ashutosh and Saurav were not there because government had invited them for the dialogue, और गवर्नमेंट ने 5 घंटा बिठाकर रखा, बात की बस 10 मिनट। सो Hmm. इन अ वे, और उसके बाद भी पुलिस वाले मतलब मैसेज भिजवा रहे थे किसी से कि वैष्णवी को बुला रहे पुलिस वाले, आफरीन को बुला रहे पुलिस वाले बात करने के लिए। सो इन अ वे दे वर अटेम्प्टिंग टू आइसोलेट मी कंप्लीटली, मुझे पूरी तरीके से अकेला कर देने के लिए। आशुतोष और सौरभ को उन्होंने 5 घंटा इसीलिए बिठा कर रखा था। बाद में वैष्णवी और दीपक बालियान और आफरीन को बुलाकर भी वो लोग वही करना चाहते थे, बट थैंकफुली दे डिडंट वेंट देयर। Hmm. और दूसरी बात रही कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। सोनम सर की वाइफ को जब पुलिस मारने आई थी, Hmm. आई जंप्ड इन टू सेव हर। मैं चला गया, मैं कूद गया और एकदम से वी कवर्ड हर फ्रॉम एवरी साइड। Hmm. और उसमें जो पुलिस की एक लाठी थी वो मुझे करके चली गई। ठीक है? उतने Hmm. ज़ोर से लगी नहीं, आई वोंट क्लेम कि मुझे बहुत ज़ोर से पड़ी, बट मुझे ब्रश करके चली गई और हमारे बाकी सारे वॉलंटियर्स को भी वो लाठियाँ पड़ी है। Hmm. और आई डोंट नो व्हाई पीपल वांटेड मी टू गेट बीटन अप सो बैडली। I think the expectation is, you have a thinking of a leader from the front. I think नहीं, that's आई what it एग्री, is. मेरे वॉलंटियर्स मुझे बोल रहे थे, मैंने वॉलंटियर्स को अपोलोजाइज़ करा उसके लिए। Hmm. बट मैं ट्विटर पर नैरेटिव देख रहा था कि अभिजीत आराम से ट्रक पर खड़ा था, अभिजीत ने खुद की लाइफ रिस्क में नहीं डाली। आई वाज़ लाइक भाई 3 दिन के अनशन पर था मैं, इसलिए ट्रक पर था। इफ Hmm. आई हैड बीन नॉट ऑन अ हंगर स्ट्राइक, आई वुड हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड विद द पीपल। और दूसरी बात ऐसा है कि मैं पिटा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। Hmm. जयपुर में मेरे साथ क्या हुआ है? जयपुर में मुझे मारा गया है। Hmm. दैट हैपेंड विथ मी।
और उसके बाद भी मैं कहीं से भी पीछे हटा नहीं। एंड नॉट जस्ट ऑन जयपुर, जब सोनम सर को उठाया गया ऑन दैट मॉर्निंग, 5-6 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे पीटा है, रोड पर घसीटा है, और मुझे Hmm. घसीट कर वो बेसमेंट में लेकर चले गए, मेरा मुंह दबा कर रखा, मेरा फोन खींच लिया। Hmm. बट उसके बाद भी मैं ट्विटर पर नैरेटिव देख रहा था कि अभिजीत को पड़ी नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार एक दो खा लेनी चाहिए मैंने अगली बार, शायद तब इन लोगों को बिलीव होगा कि नहीं, वी आर एक्चुअली डूइंग समथिंग हियर। So it's interesting that before this you said that you wanted this movement to become bigger than CJP, bigger than Sonam, bigger than you. That you were waiting for that one moment where it becomes something much bigger than all three things. या And a lot of people have described this as a leaderless movement. Would you describe it as a leaderless movement? How are you kind of analyzing it? कि ये हुआ क्या नहीं, पिछले 36 दिन में जो हुआ वो हुआ क्या, इतने लोग कैसे आ गए? Because honestly, on the day of the protest, I would say there were at least 1 lakh people on the streets. yes, yes, I've yes. never seen Delhi like और that. मुझे I've कोई never आइडिया seen. नहीं था, बिकॉज जैमर्स लगे हुए थे राइट, जंतर मंतर पर, यू नो इट। Yeah. तो मेरे सामने जो क्राउड थी, मुझे उतनी क्राउड लग रही थी, मुझे लगा यही 15-20 हजार लोग हैं। मुझे Hmm. रात को 10 बजे जब वो जैमर्स बंद हो गए, और जब मेरी मेरी बाकी लोगों से बात हुई, तब मुझे पता चला कि कैनॉट प्लेस पूरा भर चुका था। Hmm. देयर वर पीपल अक्रॉस दिल्ली इन लैक्स, मुझे कोई Yeah. आइडिया नहीं था इसका। At least, I mean, the official estimate is I think 70,000, but I think 1 lakh would have come. या तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था इसका कि बाहर इतने लोग आके रखे। यही तो करा ना इन लोगों ने, जो कम्युनिकेशन था पूरा ब्रेकडाउन कर रखा था, इंस्टॉलिंग जैमर्स, पूरी दिल्ली में इंटरनेट बंद करके रखे इन्होंने जंतर मंतर के आसपास। सो हाउ आर वी सपोज टू इन्फॉर्म द पीपल कि हमारे साथ क्या हो रहा है। Hmm. वहां पर जब पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज करी थी, हमारे ट्रक के अंदर घुस गई थी पुलिस, और हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। तब कोई मीडिया Yeah. वाला दिखा नहीं पा रहा था, मैं मीडिया वालों को बोल रहा था कि दिखाओ सोनम वांगचुक की वाइफ की बाल पकड़े संदीप लांबा ने। Hmm. और वो मीडिया वाले भी कह रहे थे वी कैन नॉट शो इट बिकॉज हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पर, हम फीड नहीं भेज पा रहे। Hmm. तो ये जो प्लान करा था पुलिस ने और गवर्नमेंट ने, पूरा थरो प्लानिंग था, जहां से कोई भी फुटेज या कवरेज बाहर ना जा पाए। But still it made it. इट मेड ऑफ कोर्स। Everything. But like, how do you assess the movement? Like I said, like, would you agree that it was leaderless? Do you agree that, or do you think that you were kind of the lightning rod through which, I mean, how are you analyzing it I yourself? think the What is it lightning about rod this was 20 movement July. that? I think the lightning rod was 20 July, but I do feel that the movement does need faces because इसके पीछे रीजन ये है ना, अगर ये फेसलेस होती Hmm. तो ये किसी को भी फेस बनाकर प्लांट कर देते जो इस मूवमेंट को डिरेल कर सकता था। बिकॉज स्टार्टिंग से अटेम्प्ट बनाए जा रहे थे इस मूवमेंट को डिफेम करने के, डिरेल करने के। एजुकेशन मिनिस्टर कहता है आतंकवादियों की बी टीम है, Hmm. बीजेपी के लीडर्स कह रहे वायरस से सारे इनको बीजेपी के कार्यकर्ता निपट लेंगे। सो मूवमेंट को पूरा डिफेम करने को ट्राई कर रहे थे, एंटी नेशनल बताने को ट्राई कर रहे थे। एंड बिकॉज आई हैव वर्कड इन पॉलिटिक्स एंड दैट टू इन दिल्ली, Hmm. तो मुझे पता है इनकी प्लेबुक, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक वी वर समवेयर सक्सेसफुल टू Hmm. नॉट लेट दिस movement get tarnished anywhere. Hmm. So your assessment finally, like what I wanted to get to was that it was mostly the fear of losing Sonam and then the police brutality that Yeah, gave it that tipping point of. yeah. At some point, did you feel that because by the end of it, I think the last 3-4 days when the crowds were really swelling, a lot of it was not in your control also because Sansad Marg में जो भीड़ आ रही थी वो बिल्कुल ही जंतर मंतर के बाहर थी. Hmm. It was a very different kind of a crowd also. Were you worried at any point that something untowardly could happen because there had been one incident where a cop was attacked I was worried after. about the students. I was worried about the students when I saw what happened on 20 July. It happened right in front of my eyes. Hmm. And many people were mad at me for calling off the march in Hmm. between. Hmm. कई सारे लोग बोल रहे थे आपने बीच में मार्च क्यों रोक दिया बैरिकेड के पास, आपने बैरिकेड क्रॉस क्यों नहीं किया। Hmm. Even some people who were marching with us were upset with me, and I had to tell them, boss, I don't know what this police has in their have in their mind. बिकॉज ये लोग जिस तरीके से लाठियां चला रहे थे, सर फोड़ रहे थे, उससे तो लग रहा था इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं कि किसी की जान भी चली जाती है तो चली जाए, लेकिन इनको मारो, इतना मारो कि अगली बार इनकी हिम्मत ना हो पाए Hmm. वापस प्रोटेस्ट में आने की। आई थिंक दिस वाज अ क्लियर मैसेज टू द पुलिस कि किसी की भी हिम्मत ना हो पाए अगली बार प्रोटेस्ट करने की, इनको इतना मारो। Hmm. वो देखने के बाद आई डिडंट थिंक दैट इट वाज गुड टू मार्च बिकॉज आई डिड नॉट वांट एनीबॉडी एल्स टू गेट हर्ट। आई डिड नॉट Hmm. वांट कि यार किसी की जान चली जाए, किसी की स्टूडेंट की जान चली जाए। इवन दो दे वर सेइंग कि हम मार खा लेंगे, आप चलो। मैंने बोला Hmm. पुलिस यही चाहती People है। were very जोश में यार, लोग जो संसद जाना चाह रहे थे, बस आई थिंक उनके दिमाग में बस यही था कि हम हाँ, संसद जाएं.
बट वही है ना कि जब इस तरह की ब्रूटैलिटी होती है, लोगों के सर फोड़े जाते हैं, बच्चियों की 12 साल की बच्ची को मारा है यार, मेल Hmm. पुलिस ऑफिसर्स ने, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो वो देखकर मुझे कहीं न कहीं लगा कि नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ इवन अ सिंगल स्टूडेंट। अगर वो हो Behind, जाता continue, finish. अगर वो हो जाता तो क्या पॉइंट है ना, मतलब स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन पुलिस को तो कोई फ़िक्र नहीं थी, वो तो पेले जा रहे थे भाई साहब। मतलब इतना मारा है ना इन लोगों ने, आई डोंट नो हाउ दे गो बैक होम एंड फेस देयर किड्स। Hmm. उनके अपने बच्चों की उम्र के बच्चों को मारा है Some यार। of the policemen I spoke to actually had their relatives at the protests. So I think it was a tricky situation for them also. Many of them recognize that some students have come here. I mean, it's legitimate grouse, but I mean, it was a rock and a hard place for a lot of people. But I wanted to understand from you यार that वाटर कैनन गन्स यूज़ कर लेते ना, जब कोई hmm, पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करती है, आप क्या करते हो? वाटर कैनन गन्स यूज़ करते हो। वाटर कैनन क्यों नहीं यूज करा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाँ, एक्चुअली कहीं भी यूज सीधा नहीं करा पेलेट उन्होंने। गन्स, सीधा पेलेट गन्स और लाठी। सो मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, किसी की जान भी चली जाए तो चलेगा, लेकिन इतना मारो कि कोई सड़क पर उतरे ना फिर से। दिल्ली पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? बिकॉज कभी कभी पुलिस ये भी बोलती थी कि सीजेपी वॉलंटियर्स बहुत अच्छे हैं, देव रियली हेल्प्ड अस। बिहाइंड द सीन्स हाउ आर दे विद यू? वीव डन दिस वन स्टोरी ऑन द जो ट्रक। लोअर रैंक के ऑफिसर्स थे, जो नॉर्मल पुलिस वाले थे, वो काफ़ी अच्छे थे। हम्म। उनमें से तो कई मुझे आकर बोलते भी थे, "यार, आप जो लोग कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो।" कुछ हम्म। पुलिस वालों ने तो पानी की बॉटल्स का अरेंजमेंट पुलिस वालों ने कराया। उन्होंने बोला, "बस हमारा नाम मत बताना।" हम्म। सो जो लोअर रैंक्स के ऑफिसर्स थे, दे वर वेरी वेरी नाइस। एंड दे ये वर जो सिंपैथेटिक टू द कॉज, आई थिंक। बिकॉज़ उनके भी बच्चे हैं यार। हम्म। वो वही बोल रहे थे, "यार, हमारे बच्चे भी ये है, अभी 10th में मेरा बच्चा 2 साल बाद वो भी एग्ज़ाम देगा। सो आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ नेसेसरी।" सो दे वर सिम्पैथेटिक, बट जो ऊपर के टॉप ऑफिसर्स थे ना, दे वर रियली इविल, दे वर वेरी क्रूअल। हम्म। वॉशरूम के पाइप काटे इन लोगों ने, हम्म। ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो वॉशरूम यूज़ ना कर पाएँ। जो हम्म। लोग पानी डोनेट कर रहे थे, पानी ला रहे थे, उनके घर पर जाकर रेड मारी है, कि आप पानी क्यों डोनेट कर रहे हो? जो लोग खाना दे रहे थे, उनके घर पर रेड मारी है, आप खाना क्यों दे रहे हो? हम्म। तो मतलब एक तरीके से पूरा ही हमारा मोरल ब्रेक करने को ट्राई करा इन लोगों ने। और जिन लोगों को लग रहा था द पुलिस इज़ बीइंग सॉफ्ट ऑन यू, द पुलिस इज़ अलाउइंग यू टू प्रोटेस्ट, पुलिस और आपकी सेटिंग है, बीजेपी और आपकी सेटिंग है। दे वर जस्ट वेटिंग फॉर अस टू एग्ज़ॉस्ट। वो हमें थकाना चाहते थे। ये एक गेम चल रहा था पुलिस और हमारे बीच में, हू ब्लिंक्स हम्म। फर्स्ट। दे हम्म। वांटेड अस टू लीव द फील्ड। इसलिए वो वॉशरूम का पानी रोक दिया था, पीने का पानी अंदर नहीं आने दे रहे थे, खाना अंदर नहीं आने दे रहे थे। जो त्रिपाल हम लगाना चाहते थे बारिश से बचाने के लिए, वो नहीं लगाने दे रहे थे। बिकॉज़ दे वांटेड टू क्रिएट as much as inconvenience possible to the students, so that they will finally get fed up and go back to their homes. In fact, we had done the story on a truck full of stones that had appeared on 20th. You had Just pointed like out कि ये क्यों आया है, and then we found out that the truck was in their custody, in Delhi police's custody, from where it moved to the और protest पता है site, आपने and क्या then बोला I था? went see. पता Hmm. है आपने क्या बोला था? जब मैंने ये वीडियो ट्वीट करा, तो जो डीसीपी है वहाँ पर, आई थिंक सचिन शर्मा, Hmm. आई थिंक इट वाज़ सचिन शर्मा, आशुतोष बात करने गया था। ही कॉल्ड आशुतोष एंड सेड, "ये अभिजीत ऐसे ट्वीट क्यों कर रहा है? Hmm. ये ट्रक के बारे में, ये ट्रक तो एमसीडी का है। ये Hmm. जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये उस कंस्ट्रक्शन का डेब्री है।" तो हमें बोला गया था कि एमसीडी का ट्रक है। एंड Hmm. वी वर लाइक, भाई एमसीडी का ट्रक कैसे आ रहा है यहाँ पर? स्टोन Hmm. से भरा ट्रक क्यों आ रहा है? और उसके साइड में ही आपने एक टूटी हुई वैन क्यों खड़ी करी है? तो ये पूरा इन्होंने वेल प्लान्ड किया था। स्टोन से भरा हुआ ट्रक रहेगा, कुछ बाहर से गुंडे आएँगे, वो गुंडे थोड़ी पत्थरबाजी करेंगे पुलिस के ऊपर, फिर एक टूटी हुई गाड़ी दिखाई जाएगी, जिससे ये बोलेंगे कि सीजेपी के सपोर्टर्स ने गाड़ी तोड़ी है और पुलिस के ऊपर पथराव किया है। ये पूरा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड था दिल्ली पुलिस के थ्रू। Now, I'm going to ask you a few questions, and then maybe we can take a few questions from our audiences also. How much time do you have, Abhijit? I know that you're pressed for time and you're giving a lot of नो, नो, ऑफ interviews. कोर्स यार, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए टाइम है मेरे पास। Yay! Pay to keep news free, guys. Okay, so lot of political parties came to show support. There was on the day of the protest, I met Samajwadi Party workers who were there. Bhim Army, Chandrasekhar's people were really there, I think, front and center. How do you assess Bhim Army's role? And also, in terms of political workers, political parties, which party do you feel was the most supportive to your cause? आई थिंक ऑल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वर रियली सपोर्टिव, बिकॉज़ जितने भी लीडर्स आए एंड दे वर रियली रियली नाइस। और Hmm. किसी ने भी ऐसा बोला नहीं कि यार हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। दे वर ऑल लाइक वेरी क्लियर, हम बस इस कॉज़ को सपोर्ट करने आए, बिकॉज़ वी बिलीव दैट द सही में गलत हो रहा है, Hmm. एंड द वे यू आर पुटिंग अ फाइट एट जंतर मंतर, ये Hmm. हम लोगों से नहीं हो पाया जो आप लोगों ने कर दिखाया। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये सेंटिमेंट था। एंड सबने यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लाइक एवरीबॉडी हैव बीन रियली सपोर्टिव।
अखिलेश यादव, ममता दीदी, अ, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल Hmm. और डीएमके के जो लीडर्स है, सारे एवरीबडी हैज बीन, चंद्रशेखर आजाद, एवरीबडी हैज बीन सो सपोर्टिव। At least Chandrasekhar made quite, I mean, he was, when Sonam got picked up, he came and he was very aggressive. He was like, इन बच्चों को कोई तंग नहीं कर सकता, अब मैं आ गया हूँ. I met a lot of his supporters actually with Ambedkar's pictures on the day Yeah. of the protest. How do you assess his role in इट this वाज़ whole वेरी thing? क्रूशियल, इट वाज़ वेरी क्रूशियल। मतलब Hmm. उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा है। एंड एज़ आई सेड, बाकी सारे लोगों में मतलब समाजवादी पार्टीज़ के भी एमपीज़ रेगुलर बेसिस पर आ रहे थे, वहाँ पर विज़िट कर रहे थे, टीएमसी के कर रहे थे। महुआ मोइत्रा वाज़ वन कांस्टेंट विज़िटर देयर, एंड Hmm. अलोंग विद दैट जॉन ब्रिटास वाज़ आल्सो कांस्टेंटली देयर, Hmm. एंड Uddhav Thackeray sir was always constantly in touch with me on call, Hmm. and everybody has been so supportive, and I'm really glad that they supported just the cause and nowhere they promoted themselves. And a lot of progressive groups from Maharashtra also Of came. course. I saw a lot of Maharashtrians. In fact, the doctor who was behind your stage, who has set up this अरे मराठी wonderful लड़का था तो dispensary. मराठी लोगों को तो आना ही था। हाँ, काफ़ी है, मतलब वो वाज़ इट लाइक कि हमारा लड़का है, क्या बोलते हैं, मुलगा, हाँ, हमारा मुलगा है. मराठी मुलगा। हाँ, तो वाज़ तो इट वो वो सब. सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मराठी में। महाराष्ट्र में एनीबॉडी फ्रॉम महाराष्ट्र विल डू एनीथिंग, दे विल ऑलवेज सपोर्ट देम। मतलब हमारे महाराष्ट्र में एक कहा जाता है, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र, व्हिच मीनिंग? मीन्स दिल्ली का जो तख्त है, वो महाराष्ट्र उसकी रक्षा करता है। हुँ, सो उसकी वजह से वो एक थोड़ा सेंटिमेंट थोड़ा ज़्यादा था, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र। एक हुँ, मराठी लड़का है, दिल्ली में बैठा हुआ है, केंद्र सरकार के खिलाफ बैठा हुआ है। तो हुँ. उसके लिए वो थोड़ा उन लोगों के लिए और थोड़ा प्राइड का मैटर हो गया कि अब ये मराठी लड़का बैठा हुआ है अपना, तो अपने को तो जाना ही है। Now, coming to where we are today, the police and the government said that, we are going to withdraw all the FIRs. Yesterday, the Delhi government said that all students will not be penalized, only the people who have, who are history sheeters. ऑन Um, हिस्ट्री and शीटर्स आई हैव वन थिंग टू से। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि कुछ 2000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स घूम रहे थे। hmm, hmm, दोज़ वेर हू वर हिस्ट्री शीटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हिस्ट्री शीटर्स खुलेआम घूम कैसे रहे थे? हाउ वर दिस क्रिमिनल्स रोमिंग अराउंड? और जिस जंतर मंतर पर मनीषा यू यू हैव कम, योर टीम वाज कॉन्स्टेंटली कमिंग देयर, उनके इक्विपमेंट्स भी चेक हो रहे थे। hmm, मैं जो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा था, जो मैं वहां बैठा हुआ था, मेरी रोज चेकिंग होती थी जब भी मैं आता था। तो ये जो क्रिमिनल्स है, इनको विदाउट चेकिंग कैसे आने दिया? hmm. How were these people allowed to be at Jantar Mantar when the government knew that these were problematic people? जब मेरी चेकिंग हो रही है, सारे मीडिया वालों की चेकिंग हो रही है, तो इन लोगों को क्यों नहीं रोका गया? So this raises again a very serious question on the intention of the Delhi police and on the intentions of the government. Currently, there are people who are being doxxed. There's a right wing army, especially targeting girls. Yes, I see it as a very specific targeting of girls who were there, irrespective of what we think of their language. But the comments are very like, very targeting lewd them. comments. Yes. There is Ruchika, there's an FIR against her for the comments, for the एफआईआर रुचिका speeches. के ऊपर मुझे ये बोलना है, एफआईआर करना बनता है क्या? मॉरली आप कह सकते हो कि गाली देना सही है, गलत है। इवन आई एम नॉट समवन हु वुड लाइक टू अब्यूज एनीबॉडी, बट एफआईआर करना बनता है गाली देने के लिए। आप उसको समझाइए, गाली मत दो। But अगर how is CJP helping these people? Like, do you have a mechanism to help? Are there lawyers on ground who are helping these यस, guys? वी हैव सेट अप अ लीगल टीम जो कॉन्स्टेंटली लोगों से टच में, हु इज कॉन्स्टेंटली रीचिंग आउट टू ऑल द पीपल हु आर बीइंग हैरेस्ड बाय द पुलिस। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट से भी हम निगोशिएट कर रहे हैं कि एफआईआर विड्रॉ कर लो। बिहार और बंगाल का आ चुका था, अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी आ चुका है। Hmm. एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल दे डोंट स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। इसमें हमसे गलती एक ये हुई कि व्हेन वी वर रीचिंग आउट टू दिस पीपल, वी डिड नॉट क्लिक एनी फोटोज, वी डिड Hmm. नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था ये ज़रूरी पड़ेगा लोगों को दिखाने के कि नहीं यार, हम लोग लीगल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं यार, हम लोगों को घर भेजने में भी हेल्प कर रहे हैं जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, बट वो हम बैकएंड में पूरा कर रहे हैं। रत्ना इज समवन हु इज कॉन्स्टेंटली ऑन द लीगल मैटर एंड शी इज रिस्पॉन्डिंग टू एवरीबडी। Are you guys helping them though with the cases? Yeah, we are going to help them. We have collaborated with Kapil Sibal, where a team of lawyers will be helping us to fight all the legal matters, and we will ensure that no student will be facing any illegal consequences because वो लोग तो peacefully protest कर रहे थे यार। Hmm. So ये So, हुआ है। and
In this, what are the kind of complaints you're hearing from your legal cell? Like, किस चीजों पे लोग टारगेट हो रहे हैं? नहीं, लीगल सेल्स पर तो थोड़ा यही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर वर थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल हम्म, एंड एज़ यू वुड नो 1 महीने में हमारी टीम काफ़ी छोटी है। हम्म, तो उसकी वजह से हम उतना फ़ास्ट काम नहीं कर पा रहे जितना हो सकता है। इसलिए हम अलग-अलग लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने को ट्राई कर रहे हैं बिकॉज़ वी डोंट हैव द बैंडविड्थ टू डू एवरीथिंग बाय ऑन आवर ओन। तो लोगों का वो है कि थोड़ा प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करो और सोशल मीडिया पर ये भी हो जाता है ना कि इतनी सारी कंप्लेंट्स आती है, उनको ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हम्म, कई लोगों का ये बोलना है कि हम सोशल मीडिया पर बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी ने रीच आउट नहीं करा। बट हम ट्राई कर रहे हैं सबको रीच आउट करने के लिए। इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन ये निकाला है कि हमने एक साक्षी पोर्टल पोर्टल निकाला है हमारी वेबसाइट पर। आपकी जो भी कंप्लेंट्स है, आपके पास जो भी एविडेंस है पुलिस ब्रूटैलिटी का या आपको किसी भी तरीके से पुलिस हैरेस कर रही है, उसके आप डिटेल्स और एविडेंसेस उस साक्षी पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए एंड आफ्टर दैट आवर टीम ऑफ लॉयर्स विल असेस इट एंड दे विल टेक द मैटर फॉरवर्ड। when the government basically, when you were negotiating with the government, the resignation came, and then you guys called off your protest. Do you think it was naive of you to think the government will not persecute students? Because what we're seeing now is, it seems to be going in that sense because they made it clear इसमें लोग peaceful करना लोग क्या कुछ चाह नहीं रहे हैं? करेंगे. इसमें ये लोग करना क्या चाह रहे हैं ना एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज Hmm. कि आप प्रोटेस्ट में आओगे तो यू विल हैव टू फेस लीगल एक्शंस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। दे आर ट्राइंग टू फियर मॉन्गर दिस यंग पीपल हु हैव केम टू प्रोटेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। तो उनका वो मैसेजिंग है बट वी आर गोइंग टू स्टैंड विद द स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू लीव देम अलोन Hmm. एंड वी आर गोइंग टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू प्रोटेक्ट देम। One of the things I was curious to know is that, like we said, like the thing started with a meme page, which is you. It is essentially your page. Now, after 2 months of groundwork, has this page evolved from a one person to an organization? Are यस। we looking at like an organization, and who is that organization, and how does decision making happen in this? Is it Abhijit deciding ki okay, resignation aa gaya, call off, okay, we are all leaving, or we're मेरी doing तो this चल or नहीं that? रही है, मेरी तो चल नहीं रही है अब। हाँ. मुझे तो बोला जाता है कि तू ना थोड़ा चीज़ें डिस्कस कर लिया कर हम लोगों के साथ, क्योंकि पुलिस के साथ मैं थोड़ा कन्फ्रंट कर रहा था व्हेनेवर दे वर स्टॉपिंग थिंग्स, त्रिपाल नहीं आने दे रहे, पानी नहीं आने दे रहे, लाइक क्यों नहीं आने दे रहे हो? तो जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है अभी एक 10-12 लोगों की बॉडी है हमारी, वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रहा है एंड So दैट you इज have a 10-12 member core, कोर मेंबर्स, which is कोर टीम, going, 10-12 and लोगों की you कोर guys टीम। you guys discuss everything now. वी हैव टू डिस्कस एवरीथिंग बिकॉज़ Hmm. अब ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया है ना। पहले तो Hmm. जब तक ये एक ऑनलाइन पेज था तब तक मेरे मन में जो भी आया मैं वो डाल रहा हूँ। Hmm. और प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग में जो 6 जून का प्रोटेस्ट था उसमें मुझे पता नहीं था कौन कहाँ से आ रहा है। आई न्यू ओनली आशु एंड सौरभ। तो तब तक मतलब मैं थोड़ा सिंगल हैंडेडली डिसीजंस ले रहा था बिकॉज़ देयर वाज़ नो फॉर्मल स्ट्रक्चर। Hmm. लेकिन इन पास्ट 1 मंथ हमारा एक को स्पोक्स पर्सन का टीम हो चुका है, कोर टीम बन चुका है, एक मैनेजमेंट का टीम बन चुका है जो पूरा प्रोटेस्ट जो था वो मैनेज कर रहा था, स्टेज मैनेजमेंट वो सब। सो वी आर टॉकिंग टू एवरीबॉडी, वी आर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम एवरीबॉडी एंड मैं सबको ये बोलता हूँ पहले आप लोग बता दो कोई क्रिटिसिज्म होगा वो होगा, हाउ वी कैन डू थिंग्स बेटर। सो अभी हम जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पर वी आर फंक्शनिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन और सीजेपी का पेज जो भी है वो भी अब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलेगा बट ऑलवेज विद अ टच ऑफ ह्यूमर एंड सटायर। Many people are wondering, like, two questions come to you. Was it a fluke that this became such a success and it won't happen again? Like you can't catch lightning in a bottle, koi kehte hain, आई एम twice. टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया फॉलोइंग, दैट वाज No, अ I'm थिंग। talking about the movement. The fact that you मूवमेंट managed नहीं to यार, get so 36 many दिन people बैठे on the रहे ground. हम, 36 दिन बैठे रहे धूप में, बारिश में, You think you can pull it off again? टू सिट अगेन फॉर 36 डेज। No, यस, this movement that you managed to create, like get people out on the ground and actually like एक्चुअली activate. पीपल आर वेरी ईगर टू कम आउट अगेन क्योंकि कल मैं इंस्टा लाइव कर रहा था जस्ट टू इंटरेक्ट विद द पीपल हु हैव शोन अ सपोर्ट। तो वहां पर बोल रहे सीजन 2 कब आ रहा है, प्रोटेस्ट 2.0 कब आ रहा है, Hmm. हमें फोमो हो रहा है, वी आर मिसिंग जंतर मंतर, वी वांट टू कम बैक अगेन। Hmm. एंड इस डिल्यूजन में गवर्नमेंट तो ना रहे कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो चुका है, Hmm. द एंगर इज स्टिल देयर एंड इफ द गवर्नमेंट डजंट meet all demands, the people will come out again on the streets. So, Abhijit, do you think it is education which is why, like, it's a topic which unites everyone? मतलब मुझे तो बीजेपी के सपोर्टर्स काफी मिले थे आपके जंतर मंतर में, हमने इंटरव्यू भी करा था एक का। एक सेफ सा टॉपिक एजुकेशन, सबके बच्चे हैं, लाइक यू सेड, सबको लगता है हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आप आ जाते हैं टुगेदर। Yes. वर्सेस सपोज यू डू अ धरना ऑन डेमोक्रेसी खतरे में है या नहीं, या ऑन एसआईआर,
Like, do you think that would have attraction? This was purely a very safe नहीं, ये subject for स्टार्ट everyone to come together. स्टार्ट भले ही एजुकेशन से हुआ हो, एंड एजुकेशन वाज एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट, बट जैसे-जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया, मैंने एक चीज़ देखी। लोग मुझे आकर बोल रहे थे, "ये बस एजुकेशन तक लिमिटेड मत रखो, वी आर रियली फ्रस्ट्रेटेड विद द गवर्नमेंट।" Hmm. सो ये पूरा जो मतलब चल रहा है ना, अभी क्या हो रहा है ना, लोगों में जो डिस्कंटेंट है वो ज़्यादा किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं है, वो मतलब पूरा एक सिस्टम के अगेंस्ट है। बिकॉज़ क्या हो रहा है, जुडिशरी में जब एक कॉमन मैन जाता है, उसको जस्टिस नहीं मिलता है। Hmm. लेकिन वहीं पर कोई रूलिंग पार्टी चली जाती है, उनके केस तुरंत हियरिंग लग जाती है और तुरंत डिसीजन भी हो जाता है, राइट? तो वहां पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो भी डिसग्रंटल्ड है वहां पर लोग, कि यार हम लोगों के लिए तो जुडिशरी में कहाँ जगह है। दूसरा, आप इलेक्शन करवाते हो, इलेक्शन में लोग वोट डालते हैं, धूप में खड़े रहकर दिन भर लाइन में खड़े रहकर लोग वोट डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिसको वोट डालते हैं वो किसी और पार्टी में चला जाता है, वोट डाल देते हो, सरकार बदल जाती है 3 दिन बाद। और उसके बाद क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स के साथ साथ इक्वल नंबर जंतर मंतर पर था अनएम्प्लॉयड लोगों का, डिग्री होल्डर्स जो अनएम्प्लॉयड है उनका भी नंबर था सबसे ज्यादा। और जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है कंट्री में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। देयर इज अ ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस गोइंग ऑन इन इंडिया। लोगों का लाइवलीहुड डिफिकल्ट हो चुका है। हाउ इज समवन सपोज टू मैनेज देयर फैमिली इन मेयर 20,000 25,000? यार क्या होता है उसमें? तो ये जो प्रोटेस्ट था, इससे एक आउटलेट मिला है लोगों को अपने अलग अलग इश्यूज को लेकर फ्रस्ट्रेशन निकालने का। एंड दैट इज व्हाई पीपल वर कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि धर्मेंद्र प्रधान के एक इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगो। But actually, you're right. I met a lot of people who were working class, a lot of labor also, like या plumbers, mason, carpenters. Precisely what you're saying, a class of people who are probably never even gonna see education, and then या probably never will be able to educate their child. But they were there because there was that sense ki yaar, life is getting harder and harder for us, and there's एग्जैक्टली। no one listening to us. या That I think was एंड आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस प्रोटेस्ट इज नॉट द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। द बिगेस्ट अचीवमेंट एंड सक्सेस ऑफ दिस प्रोटेस्ट इज दैट लोगों के अंदर का डर खत्म हो गया है। इतना 20 जुलाई की ब्रुटैलिटी के बाद भी क्राउड ज्यादा बढ़ी, कम नहीं हुई। hmm. So people have stopped fearing the government. They have stopped hesitating from asking uncomfortable questions to those in power. I think that is the biggest success of this movement. फिर से सवाल करना सिखाया है, फिर से लड़ना सिखाया है। What I mean in terms of issues, uh, what what are the next issues you see CJP picking up? Is it going to be focused on education, youth, एजुकेशन तो रहेगा ही, or बट you could be doing it for environment, for infrastructure, for या पब्लिक, अभी हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। बट इसमें हमें थोड़ा लोगों से भी कंसल्ट करना है। बिकॉज जितना मेरा एक लर्निंग रहा है जंतर मंतर का, दैट इज एक कांस्टेंट कंप्लेन थी कि हमारी कोई सुनता नहीं है आजकल। hmm. And that is one learning that we are taking away from Jantar Mantar, that we have to listen to the people first and then decide what we have to do. I want to take some questions that are coming. Ashish, where can I see the questions? On the screen. Okay, future of CJP. You want to tell us future of Yeah, the CJP? future of the CJP, what we have in mind is that it is going to be a political pressure group, because what India needs right now is a public movement. Hmm. Country can be changed for better only through a public movement, and that's what we are going to aim for. So, do you want to help parties like UP में अगर incumbent योगी है तो you help हमें SP? हमें किसी की हेल्प नहीं करनी है, हाँ. हमें लोगों को एक तरीके से जागरूक करना है Hmm. कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की बात होनी चाहिए, एंड एक जो है हीरो वर्शिपिंग, वो हमें खत्म करना है पॉलिटिक्स से। But so when you say you want to be a political pressure group, you want to force all parties to kind of यस, uh, टू टॉक अबाउट द इश्यूज दैट मैटर्स टू टुडेज जनरेशन एंड टू द यूथ ऑफ द कंट्री, hmm. बिकॉज 60% of the people are under the age of 35. They are the ones in the majority. तो अब ना बात उनकी होनी चाहिए, बिकॉज इट्स देयर फ्यूचर विच इज एट स्टेक। And you're certain you don't want to help parties because a lot of the opposition came to you because they see in this movement a captive youth audience that can vote for them. So you don't want to be an advocacy for voters कि किसको vote करना है. सही मुद्दों पर पॉलिटिक्स करो, हाँ. talk about the issues that matters to the youth, and the youth will by default vote for whoever they want.
Rahul wants to say situation of government schools across the country is very bad. This needs immediate intervention. Will CJP speak for this issue? ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बिकॉज बस स्कूल की हालत खराब नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स की तो हालत हालत खराब है। प्राइवेट एजुकेशन में क्या लगा रखा है? प्राइमरी स्कूल के बच्चों की फीस 1 लाख हो रखी है। एजुकेशन हैज बिकम अनअफोर्डेबल फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। जितनी अर्निंग्स नहीं है उससे ज्यादा फीस है। लोग सेविंग्स कहाँ से करेंगे? सेविंग्स से भी इनका एजुकेशन नहीं हो पाएगा। सो प्राइमरी एजुकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। In fact, again, whenever we travel to universities, colleges में एग्जाम लीक के बाद लोग अनअफोर्डेबिलिटी की बात करते थे कि हाँ, एजुकेशन बहुत महंगी है, महंगी है। प्राइवेट हम नहीं कर सकते, यू यार नो। मुझे पता है ना, क्योंकि मेरे कजन से उनके बच्चे हैं, हम्म 1-1 लाख स्कूल की फीस देनी पड़ती है, कहाँ से देंगे? और हम्म आरटी में क्या होता है? आरटी में पहले ही सिफारिश से नंबर्स लग जाते हैं। Can we have some more questions, Ashish? Anything else? Wait. Yeah. What is your thought on PSU versus privatization? आई थिंक पीएसयूज आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। अगर सारी चीज़ प्राइवेटाइज कर देंगे तो मोनोपोली लग जाएगी, जैसे अडानी अंबानी की लगी रखी है। उसके बाद वही होगा, आपको उन्हीं दो लोगों की फैसिलिटीज यूज करनी पड़ेंगी, फिर वो चाहे किसी भी दाम पर बेचे, किसी भी रेट पर बेचे। बट बीइंग सेड दैट वी आर नॉट अगेंस्ट बिजनेस। बिजनेस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर अ हेल्दी मार्केट, फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी। So, thank you, Abhijit. We believe in you. What do you have to say on the new reservation hatao movement, casteism hatao movement? Yeah, that page got some 5 million views. Reservation hatao movement. What do you think of that? कास्टिज्म जब तक रहेगा तब तक तो रिजर्वेशन हटा नहीं सकते, Hmm. बिकॉज बहुत ही ज्यादा अनप्रिविलेज लोग हैं इस देश में Hmm. जो एजुकेशन नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ देयर सोशल सर्कमस्टांसेस। व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू पुश दोज पीपल अवे फ्रॉम एजुकेशन। अगर कोई चीज लोगों को एजुकेशन इंश्योर कर रही है तो उससे दिक्कत क्या है? अच्छी बात है ना, एजुकेशन ही तो मिल रहा है ना, और क्या मिल रहा है? Hmm. कोई बंगला गाड़ी घर तो नहीं मिल रहा है ना किसी को। बच्चों को एजुकेशन मिल रही है तो उससे क्या दिक्कत होनी चाहिए किसी को? Will you be open to collaborating with Janta on E20? In fact, so many people after the protest were like, "Ab E20 की बारी है." फर्स्ट आई नीड टू नो हु इज बिहाइंड E20। पहले मुझे वो पता करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब कोई डॉक्सिंग कर रहा है यहाँ पर। बट आई होप दिस आर जेन्युइन गाइज, एंड E20 आई थिंक काफी ज्यादा जेन्युइन पब्लिक एंगर है उसके अगेंस्ट। सो या इफ नीडेड वी विल डू इट। When is your birthday? माय बर्थडे 29 September। 29th September. You're a Libran. या आई एम अ लिब्रा। I'm also a Libran. ओ Great. वाओ, व्हेन इज योर बर्थडे? 11th October. 11 October। नाइस। So one thing, there's a lot of suspicion around CJP also, and you also, या because there is this thing ki they are closet right wing or they are center right. राइट व्यू। ओ माय Yeah. गॉड। So there is, of course, there was a strong left, core to this protest. ISA, SFI, these guys really formed, I think, the core of the movement, especially in early days, how they kept it sustained. But then there is this AAP tag on you guys, and there is AAP tag आता है तो फिर IAC आ जाता है, IAC आता है तो अन्ना आंदोलन आता है, फिर आ जाता है ये RSS होगा. And then recently Sonam Wangchuk's wife, her earlier interviews were played where she's in an interview with Subramaniam Swamy and she's talking that we don't need secularism. So, A, what do you think of her views? Secondly, this ideology question on you. Ki bhai, where do you stand? Are you left? Are you right? Are you center? Where are you? I don't know whether do I stand on the left, right, or center, but my ideology is that the ideology of Dr. Baba Sahib Ambedkar, Mahatma Gandhi, and Pandit Jawaharlal Nehru, which is democratic, secularist, and someone who will work towards social justice, Hmm. because this is what our country need. And I'm a progressive person, and I believe in the freedom of choice of people. Hmm. And what do you think of her views, Gitanjali? यार उनके वो अपने व्यूज है, लाइक हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट? शी इज वेरी सीनियर टू मी, Yeah. but I am someone who believes in secularism, and I think secularism is something that has been holding this country together, and that is the only thing that will hold this country together. Abhijit, you would have seen so many tense moments in this 36 days, and like we were discussing, like you sitting alone and police completely dismantling Jantar Mantar. And literally every day, even as journalists, we were thinking, ki, ab kya hoga, ab kya? Like everything was so uncertain. Were there moments, what stood out for you in terms of, क्योंकि कभी कभी इतना कुछ मेला चल रहा होता है आपके पास that really ridiculous things happen and you like shit ये क्या हो गया? Do you have such anecdotes
from then, with stuff that really surprised you for, irony, or how ridiculous it was, or just shocked you ki what the hell is happening around me? यार नहीं, मतलब ऐसे तो मुझे अभी इमीडिएटली कोई याद नहीं आ रहा है इंसिडेंट, क्योंकि मेरे साथ हो क्या रहा था ना, बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली मीटिंग सो मेनी पीपल। मैंने एक चीज बनाकर रखी थी जिसके लिए मेरी टीम भी मुझे बहुत गालियां देती थी। डोंट मीट सो मेनी पीपल। तू थक रहा है तो बस लोगों से मिल रहा है, सेव योर एनर्जी, सेव योर टाइम, वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज एज वेल। तो मैं बोलता था स्ट्रेटेजी तुम लोग बना लो, मुझे Hmm. लोगों से मिलने दो, बिकॉज इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं। सो आई वॉज ऑलवेज अमंग द पीपल। तो मैं बस लोगों से मिल रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था अगर एक बार लोगों से कनेक्शन बना लिया ना, ये लोग टिके रहेंगे यहाँ पर। फिर स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते रहेंगे, बट व्हाट वी नीड इज टू कनेक्ट, टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द पीपल। और मैं लोगों से उसलिए आई वाज लाइक, मतलब दिन में अगर मैं सुबह से 7 से लेकर रात के 12 बजे तक बात करूं, तो उसमें से मैं पूरा दिन बस 1-2 घंटे छोड़ दिया जाए तो मैं लोगों से ही मिलता रहता था। एंड आई जस्ट यूज्ड टू आस्क, कहाँ से आ रहे हो, आपका नाम क्या है, Hmm. एंड व्हाई आर यू हियर। तो उसमें लोग बताते थे, एंड काफी अच्छा यार। But who was like the most surprising person for you who came? Like somebody you met काका, at the protest and you काका, were, huh? काका द सिंगर, Kaka, the singer. बिकॉज ही केम फ्रॉम द पब्लिक एंड ही स्टूड नियर द स्टेज। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं स्टेज पर खड़ा हूँ और वहां पर मुझे कोई बोलता है यार काका आया हुआ है। जो आपका रिएक्शन था, हाँ, तो मेरा भी हाँ, ये था, काका मुझे भी कौन नहीं काका? पता काका कौन है। नहीं, मुझे सॉरी। पता था, मुझे पता था, हाँ, बट काका एकदम से ऐसा बोला कि काका आया है। I was like, कौन? तो कहते अरे काका सिंगर। मैं बोला काका सिंगर आया हो? तो कहते हाँ हाँ। तो उन्होंने, मैंने बोला कहाँ पर है? तो उन्होंने पॉइंट आउट किया, कहते वो वहां पर है। तो मैंने देखा, मैंने बोला, पक्का वही है, कोई डुप्लीकेट तो नहीं आ गया? हम्म. तो उन्होंने बोला, नहीं यार वही है। सो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, काका कमिंग टू। In terms of regular people who were coming, because some people really came from far. Like there बिहार were, से लोग आ रहे थे, yeah. मेरे हाथ में जनरल टिकट थमा देते थे और बताते थे अभिजीत भाई अभी अभी बिहार की ट्रेन से आया हूँ, Hmm. जनरल डिब्बे में बैठकर आया हूँ, जगह नहीं थी, लैट्रिन के पास बैठकर आया हूँ पूरी रात। Hmm. सो दीज वर द काइंड ऑफ स्टोरीज। मतलब यार बहुत ही, एक लड़का था, वेरी फनी स्टोरी, वेरी फनी बट ऑल्सो इंस्पायरिंग। ही वॉक समथिंग 250-300 किलोमीटर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बी Hmm. एट जंतर मंतर। Hmm. वो आया, मैं उससे मिला, और उसने बोला कि अब मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मेरी बीवी मेरे से बात नहीं कर रही है, बिकॉज Hmm. शी इज अपसेट, आई जस्ट लेफ्ट एंड आई वाज वॉकिंग, सो शी वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट मी। तो क्या आप प्लीज मेरी बीवी को मना लोगे और मेरे से बात करने के लिए बोल दोगे? Hmm. देन आई हैड टू स्पीक टू हिज वाइफ एंड आई हैड टू टेल हर दैट प्लीज ऐसा मत करिए, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल कर आया है, ही इज ऑलरेडी इन टू मच पेन, सो प्लीज टॉक टू हिम फॉर अ व्हाइल। Hmm. और And why एक was he? Huh, और tell एक me. वीडियो वियर्ड हुई, रात के 12 बजे एक लड़का आता है, मुझे अपना फ़ोन देता है, कहता है मेरी फ्रेंड को आपसे बात करनी है, शी इज़ माय गर्लफ्रेंड। Hmm. वो फ़ोन देता है एंड दैट गर्ल सेज, "अभिजीत, आई एक्चुअली लाइक यू वेरी मच।" What? और मैं उस बेचारे को देख रहा हूँ लाइक, हाउ एम आई सपोज्ड टू रिएक्ट टू दिस? बोला, "हाँ, थैंक यू।" और मैंने बोल दिया, बोला, "थैंक यू सो मच।" मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ अब उसमें। With so many people looking up to you in terms of people coming and meeting and they wanting attention, or they want, I think the primary sentiment is they want to be seen. A lot of people just feel that they haven't been heard or या, seen in the way that this movement allows them to be seen. It is very crucial how you behave. Like you said, every little thing, like did you stay back after the protest? हुँ, Did you take care of students or not? Why were you not leading from the front? हुँ, The party that became a thing कि हुँ, why are you partying when there are CJP volunteers जो वापस जा नहीं पा रहे हैं? हुँ। Do you feel the burden of this, and do you recognize that, okay, this, no matter how this shapes up, नो, आई डू what you रियलाइज़ do द बर्डन is, ऑफ इट, आई डू रियलाइज़ द बर्डन ऑफ इट, बिकॉज़ एक तो मुझे इस पर ना लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करनी है, डोंट रिपीट द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन विथ other movements, other organization, other political parties where you expect एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशंस को आप ऊपर उठा दो तो उनके पास सारे सॉल्यूशन होंगे। hmm, आपसे अगर कोई भी कहेगा कि मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा, वो इंसान आपसे झूठ कह रहा है। Nobody has the solutions for all the things. What we can do is we can only try, and we can only try with the help of the people. इसमें जो मुझे लगता है हमारे सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, rather than making one person bigger than everything, hmm, मतलब मैं कह रहा हूँ यार रातों रात मुझे हीरो मत बनाओ। आज मैंने एक चीज करके दिखा दी, वो पब्लिक सपोर्ट की वजह से हुई है। कल को हो सकता है मैं कोई और एक चीज ट्राई करूँ जो सक्सेसफुल ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद मैं कोशिश करना बंद कर दूं या मैं फेल हो जाऊं। मैं कोशिश करते रहूंगा, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द जनरल पब्लिक
to become more responsible citizens, to become more aware citizens. जिस दिन वो हो गया ना, तो हमें किसी एक बंदे पर इतनी सारी होप्स उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कंट्री में अभी जो प्रॉब्लम है वो यही है, वी लुक फॉर अ सेवियर, वी लुक फॉर अ मसीहा जो आएगा और एक लोगों एक तरीके से हम लोगों का उद्धार कर देगा। नहीं होता, ये फिल्मों में ठीक लगता है यार, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में आपको हर छोटी चीज अपने आप पर लानी पड़ेगी, अपने आप से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। जब तक वो नहीं होगा, तब तक आज मैं कर लूंगा, 5 साल बाद मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आज है, बिकॉज ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो गेट आउटडेटेड ना। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट it keeps evolving with time, with the population and with the current demographic. 5 साल बाद आज लोग हम मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, 5 साल बाद हमें कोई घास नहीं डालेगा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। और उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। हर किसी का एक स्पेसिफिक रोल होना चाहिए, उसने वो रोल कर देना चाहिए, बट द लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द पीपल, बिकॉज द डेमोक्रेसी इज फॉर देम, नॉट फॉर सम सिंगल इंडिविजुअल, few organization or few political parties. In fact, this is one thing I often think about CJP, which is that it's at a lightning speed things have happened with this movement and with you, from a meme page to the resignation. And the thing about internet is जितना वो ऊपर जितनी जल्दी पहुंचाती है उतने जल्दी नीचे भी. Yeah. Does that keep you insecure? Do you worry like? Not at all, मनीषा, like मैंने एएपी में काम करा है, वहां पर मैंने ये देख चुकी है चीजें फ्रॉम वेरी क्लोजली। आई हैव सीन लाइक पॉपुलैरिटी मिलती है, उसके बाद आपको कोई पूछता भी नहीं है। तो मेरे अंदर वो चीज है, इसलिए आई ऑलवेज ट्राई टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। तो इसलिए मैं इंटरव्यूज भी अभी पिछले कुछ दिनों में नहीं दे रहा था, बिकॉज मुझे वो ग्लोट नहीं करना था यार, रेजिग्नेशन दिला दिया। आई जस्ट नीडेड सम टाइम टू जहां पर मैं वो बात बोलूं जो मेरे अंदर है, और जो मैं बात मोमेंट में आकर ना बोल दूं कि देखो रेजिग्नेशन हमने करवा दिया, हो गया हमसे, बट इसके आगे भी हमें कुछ करना है, उस पर भी फोकस करना है। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज लाइक वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स ग्राउंडेड। अगर ग्राउंडेड नहीं रखेंगे तो हमारे ऊपर भी वही चीज होगी, हमारे अगेंस्ट भी एंगर बढ़ेगा, और जो बढ़ना भी चाहिए यार, अगर कोई गलत चीज करते तो बढ़ना भी चाहिए। दैट इज हाउ थिंग्स शुड बी। Have you guys been open to criticism coming from journalists and questions coming from journalists? Yeah, we have been. Have you read some of the criticism that's come your way, and which one you felt like, okay, this is maybe something right being said here and we need to एक जो हेकलिंग वाला हुआ था, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने कहा था हेकलिंग का, तो उसके ऊपर हम तो कंटिन्यूअसली बोल रहे थे प्लीज डोंट हेकल जर्नलिस्ट। जो इंसान ग्राउंड पर आ रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, वो मेहनत कर रहा है, वो नॉर्मल रिपोर्टर है। जो एसी रूम में बैठे हुए बड़े बड़े एंकर्स है, उन लोगों का एजेंडा रहता है, दे लिसन, दे टो सर्टेन लाइन, बट इट्स नॉट द ग्राउंड रिपोर्टर्स। तो वो एक क्रिटिसिज्म था विच वी रियली सीरियसली कंसिडर, एंड हम लोगों से बार बार अपील कर रहे थे, बट द फ्रस्ट्रेशन अमंग द पीपल वाज सो मच। हम कितना भी समझाने को ट्राई कर रहे थे, पीपल वर नॉट रेडी टू लिसन, बिकॉज वही हो रहा था ना कि ये गोदी मीडिया वाला है, आ रहे प्रोटेस्ट को डिफेम करने ही आ रहे हैं। What immediate things next? Like you said, you wanted to think, but I mean, you also need to earn money and like find a profession for yourself, because this या won't like in terms अभी of. तो मुझे जॉब तो कोई देगा नहीं, मुझे लगता है So what is your career path? CJP is it? यार सीजीपी तो मुझे फुल टाइम करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग आई कैन नॉट डू पार्ट टाइम। ये फुल टाइम करना पड़ेगा, बट उसके बीच में अगर मैं कुछ कंसल्टेंसी कर पाता हूँ, मेरे कुछ कम्युनिकेशन के स्किल्स है, पब्लिक रिलेशंस के स्किल्स है, इफ आई कैन पुट देम टू अ गुड यूज फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन और अ कॉज फ्रॉम विच आई कैन गेट सम मनी, आई विल बी ओके विद दैट, क्योंकि घर भी तो चलाना है। Okay, we'll take last few questions, but my last question, you mentioned AAP. And when Kejriwal came to meet you, there were lots of jokes that he's looking the happiest right now. Yeah. It's like, Papa, dekho, maine kitna bada kaam kara hai. And you actually look very happy seeing Kejriwal. Yeah. How much were you in touch with him through this thing? Because, of course, he's somebody who's done this. He's No, probably I a great spoke to guy to him. get advice I from. spoke to कि him अब 2 क्या days करें? before. Two days before his visit, I spoke to him, and he told me that he wants to visit. I was like, okay, आ जाइए आप, अब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, आ जाइए। And he was like, So I'm was very he giving you advice at any point? You didn't seek any advice from him? no, no, not at all, not at all. Advice तो कोई ली नहीं, टाइमर्स लगे हुए थे, कहाँ से बात करते हैं। और मेरी टीम वाले भी वही कर रहे थे कि लोगों से कंसल्ट कर लेते, लोगों से कंसल्ट कर लेते। मैंने उनको बोला अभी किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं हम, जो But a लोग lot of बात AAP guys were there front and center, like Saurabh was there. And there was this thing that a lot of,
like a lot of the funding, not funding in that sense, but some of the paraphernalia that you needed was coming through AAP. Was that, is that true? नो, And नॉट एट ऑल। मतलब अब ये सौरभ जो आ रहे थे वो सारे ही पार्टी के लोग आ रहे थे। इफ आई हैव टू टेल यू द नंबर्स, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा लोग आए थे, hmm, दैट वाज फ्रॉम द समाजवादी पार्टी। hmm, उनके एमएलएज इतने ज्यादा आ रहे थे, उनके एमपीज इतने ज्यादा आ रहे थे, मेरा तो मन कर रहा था मैं अखिलेश भैया को कॉल करके कहूँ कि भैया कुछ लोग 20 जुलाई के लिए भी रख दीजिए। hmm. तो सबसे ज्यादा प्रेजेंस जो था वो समाजवादी पार्टी का समाजवादी था। पार्टी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस या था। एबी का ज्यादा हाईलाइट हो रहा था बिकॉज आई हैड वर्क विद देम इन द पास्ट, हाँ. बट दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दैट, और कुछ नहीं था। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल से ज्यादा मेरी बात हुई उद्धव ठाकरे से। उद्धव सर यूज्ड टू कॉल मी अप एवरी सिंगल डे एंड यूज्ड टू आस्क तू ठीक है, बिकॉज अगेन मराठी लड़का है ना, Hmm, वो है थोड़ा, तो मराठी में बोलते थे तू ठीक है ना, तू कुछ भी रहे मुझे बता देना, वी आर देयर फॉर यू, वी आर हियर फॉर यू। hmm, सोनम सर का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। एंड यूज्ड टू डेली आस्क, घर वालों से बात किया, घर वालों से बात नहीं किया ना, मैं शाम को फिर से पूछूंगा तूने घर पर बात किया या नहीं किया। hmm, So Uddhav Thackeray was someone who was constantly calling up and checking on me. But वही अगेन अरविंद केजरीवाल का हाईलाइट हो जाएगा, सौरभ का हाईलाइट हो जाएगा, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद देम इन द पास्ट। बट उद्धव ठाकरे से जो सपोर्ट मिला है वो हाईलाइट नहीं होगा। आई वाज मोर हैप्पी व्हेन उद्धव ठाकरे केम, बिकॉज महाराष्ट्र से कोई आया हुआ है। एंड आई hmm, वाज टोल्ड बाय हिज टीम दैट ही हैज अ बैक इंजरी, and yet he came and there was no business class available, so he took a economy ticket and he said no, I want to be at Jantar Mantar because जो पुलिस ने करा है उसके बाद I need to be there, and hmm, he came there at 10 p.m. in the night। hmm. उनको तो मैंने खुद हाथ पकड़ के ऊपर लाया because he could not walk without support। And what about Rahul, the famous battle of CJP versus यार हमारा कोई Congress? बैटल नहीं है यार, मतलब ये मुझे पता नहीं है क्यों बैटल बनाया जा रहा था बार बार कि Hmm, सीजेपी और राहुल गांधी का बैटल चल रहा है, कोई बैटल नहीं चल रहा था। पवन खेड़ा आए थे, ही सेड दैट आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी, वी आर विथ यू, वी स्टैंड विथ यू, व्हाटएवर कॉज यू हैव पिक्ड अप इट्स रियली गुड एंड वी स्टैंड विथ यू ऑन द कॉज। कोई भी बैटल नहीं चल रहा था यार, ये मतलब जानबूझकर ना एक डिवाइड क्रिएट करने को ट्राई कर रहे थे। मुझे लगता है वो ना कहीं पर ना नर्वस हो रहे थे कि अब अपोजिशन भी इन लोगों के साथ आ गया है तो ये लोग ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। hmm. But there's no bad will, ill will from your side, No, not at all, not at because a all। lot of your followers were like constantly कि राहुल ये है वो है, और वहां से भी कांग्रेस वाले वर आल्सो सेइंग कि ये तो आपकी बी टीम है ये है। यार देखो, जो ऑनलाइन ट्विटर पर लोग बोलते हैं ना, वो बोलते रहेंगे, उनका क्या कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो डिसीजन मेकर्स है, हमारे जो डिसीजन मेकर्स है, हम में तो कहीं से भी ऐसा कुछ था नहीं। Hmm. 15th August is coming. What's your plan for 15th August? Are you going to give a call to action to cockroaches to 15th do something? August, I'll most probably play Vande Mataram on my TV early in the morning, just like I have always been doing. Hmm. And yes, we will definitely plan something. But here is a question: are you a fan, and especially a football fan? I have spotted you wearing Indian cricket team jersey and Real Madrid jersey. Yes, I'm a big sports fan. In fact, I was a huge cricket fan. I have played professional cricket until the age of 18। मैंने ट्राई करा था क्रिकेटर बनने का, बट जो हर फैमिली में डायलॉग मारा जाता है, मेरे लिए भी वही मारा गया था कि हर कोई तेंदुलकर नहीं बनता, पढ़ाई कर ले, Hmm. जॉब का देख ले, खाने पीने का लाइवलीहुड वहां से चलेगा। एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे भी लगा क्रिकेट इज समथिंग आई कैन नॉट अफोर्ड टू चेज, तो इसलिए आई हैड टू गिव अप दैट। और मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा था, बट आई यूज्ड टू लव, आई वाज रियली पैशनेट अबाउट क्रिकेट। आई यूज्ड टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 4 a.m. in the morning just to practice cricket, even in peak winters। I was a huge fan of Rahul Dravid, Ricky Ponting. Okay, I might start a new controversy. Hmm. Sourav Ganguly is my favorite captain because I believe he is the one who taught India how to win. Hmm. And I don't coming back to Real Madrid, Hala Madrid for life. Real Madrid is my favorite football club. Would you join politics when time comes? India needs leaders like you. Why Oh, not politics? Yeah, real change तो politics में आके होता है. नहीं, I do agree that politics brings long lasting changes। लेकिन जो हमारे देश में अभी सिचुएशन है, वो डिलीशन हो रहे हैं, एसआईआर हो रहे, जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनके वोटर्स गायब किए जा रहे हैं, और जो लोग जीत कर भी आ रहे हैं वो शाम को एक पार्टी में होते, कल सुबह किसी और पार्टी में होते। तो इतना ज्यादा मर्की हो रखा है ना पॉलिटिक्स, कोई कंटेस्ट करना चाहे, कोई अच्छा काम करना चाहे तो भी उनको करने नहीं देंगे। वॉट आई फील इज दैट इंडिया को अभी एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है to bring back accountability, not just in the government but in all those independent institutions, sorry, in all those institutions who were Hmm. supposed to be independent: the judiciary, CBI, ED, media,
मीडिया को तो सुधर जाना चाहिए अब। Well, they're still going on. If you look at the primetime channels, they're still pretty नहीं much यार, going on about. Now it's about the kind of language that was used. How are you viewing this? And अरे there was also लैंग्वेज, criticism. You guys went to the same channels. कि रमेश आप भी आज बिजली तक ने चले गए पार्लियामेंट हो. में क्या कहा था? Hmm. क्या वर्ड यूज किया था उसने एक फेलो एमपी के लिए? योगी आदित्यनाथ ने एक एएनआई के वाले के लिए क्या वर्ड यूज किया था? मैंने वीडियो भी डाली उसके। पीएम मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये वर्ड यूज किया था। हाउ डेरोगेटरी इज दैट? Hmm. बीजेपी के कौन से नेता है जिनके मुंह से गाली नहीं निकली है? ये मॉरल पुलिसिंग बच्चों के ऊपर क्यों कर रहे हो आप इन बच्चों को समझा दीजिए, दीज आर किड्स। उनको आप समझा दोगे गाली मत दो, अच्छा नहीं है, ठीक है, जस्ट लीव इट एट दैट। अगर गालियों पर एफआईआर करनी पड़ी ना, तो सबसे ज्यादा एफआईआर बीजेपी के आईटी सेल पर करनी पड़ेगी, जो इतने सालों से इतनी सारी लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देती थी। कोई भी लड़की क्रिटिसाइज करे उसको प्रोस्टिट्यूट बोलते थे। कोई भी लड़की क्रिटिसाइज करे देर, कितने गंदे वर्ड्स यूज करे यार। ये लोग गालियों के लिए एफआईआर कर रहे हैं लड़कियों पर, छोटी छोटी लड़कियों पर। समझा दीजिए ना उन्हें, जस्ट लीव इट एट दैट। इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। मॉरली आप उस पर डिबेट कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस वेर यू कैन एक्चुअली फाइल एन एफआईआर। और ये जितने भी लोग लड़कियों को ऑनलाइन गाली देते थे, वो अपने बायो में लिखते प्राउडली फॉलोड बाय पीएम मोदी। Hmm. तो उनके ऊपर कर दो एफआईआर। नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? So many such cases. या One important question: how will you fund yourself if you're going to stay a pressure group? So it's true. CJP becomes an organization now. It's 12 people, you're saying, who make decisions. And if you want to be a pressure group, you will need funding. So how do you plan to fund yourself? जस्ट लाइक न्यूज लॉन्ड्री। Yes, people power. या यार Get देखो, people to. आप लोगों को चाहते हैं ये मूवमेंट आगे बढ़े, तो आप लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। बाकी जो भी है, कहाँ खर्च हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। There'll be transparency of funds because that's बस हम as नाम we go. नाम अनाउंस नहीं करेंगे, बिकॉज ईडी और सीबीआई की रेट्स पड़ना शुरू हो जाएगी आप लोगों पर। Is Dipke joining Uddhav Thackeray? No, yeah, not at all. One thing I would like to make it very clear, I won't be joining any existing political party. Hmm. मैंने ज्वाइन कर लिया ना, ये कॉकरोच मुझे लिंच कर डालेंगे। Hmm. And what's your take on ECI? ईसीआई के बारे में मैं क्या ही बोलूं, मतलब जो बंगाल के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर थे, वो इलेक्शन के बाद चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। Do you like AIB? एआईबी? Such different questions are coming in. Yeah, All India Bakchod. अच्छा, वो वाला। यार वो जो लोग कर रहे थे ना, काफी अच्छा कर रहे थे। आई होप दे डू दैट अगेन। और भी Do that ऑब्वियसली रिस्क काफी ज्यादा है। Uh, Great, Abhijit. It's been good fun chatting with you. Thank you so much for थैंक taking यू। out so much time. And wait, one last question is coming. Did something come? No. CJP will also hear problems of university students. Yes. ऑफ कोर्स बॉस, वही तो कर रहे हैं। One very debate you should settle. There is a war going on between Gen Zs and millennials. Millennials are saying कि भाई movement को हमने ताकत दी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो जेनजी था जिसने इंस्टा रील से उसको वायरल कर दिया, बट हमने वी वर गोइंग एवरी डे. यू कांट से मिलेनियल्स डिड नथिंग. मनीषा, You yourself are a millennial, so please, was it a Gen Z movement or was it a millennial movement? मनीषा, आई थिंक वी शुडंट बी रिपीटिंग द मिस्टेक्स ऑफ द बूमर वेयर वी ट्राई टू से अरे इन लोगों को कुछ नहीं पता है, ये लोग बच्चे हैं। इट वाज द जेनजी हु लेड दिस मूवमेंट, हु मेड द सक्सेस पॉसिबल। इट वर द जेनजीज। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज जो जेनजी ने करी है, पुलिस की ब्रूटैलिटी का जवाब आप लोगों ने मीम से दिया। आई डोंट थिंक देयर कुड बी एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट। I know the police memes didn't stop. I was non-stop for one whole day, one after the other. Like, and I think one thing also very particular about this movement was Abhijit, that the most compelling footage of the day of the march came from the people themselves. यस। I think that made mainstream media completely obsolete, even Actually, content creators to that. many agencies did approach us and they were like, you are working for a cause and we would like to give you our services for free. But I was like, नहीं boss, let the people do it. ये जितना ऑर्गेनिक, जितना रॉ रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। Hmm. And like I said, the most compelling footage of police brutality, of protesters standing up to the police, मुझे all वो of it came from the people. सबवे सर्फर वाला काफी अच्छा लगा, जहाँ पर वो फोन लेकर भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है। फिर पुलिस अंकल. और एक लड़की का मैंने वीडियो देखा, वेयर शी इज गेटिंग ड्रेस्ड अप एंड एवरीथिंग एंड शी सेइंग जा रही हूँ जंतर मंतर पुलिस की लाठी खाने। आई हाँ. वाज लाइक, क्या जनरेशन है ये? Yeah.
So I think that was Truly something very, fearless generation, it yeah. has to be studied actually Yeah, sociologically also how this that's happened, true. and Yeah, maybe we'll see a lot more. And of course, before we wrap up, I would like to urge everyone that, like we've discussed, this movement was ignored for a very long time. I think it had some very real, whatever your, assessment of it may be. You may like Abhijit Dipke, you may not like him. You may think CJP hai kuch, you may think kuch nahi hai. But I think it brought together some very pressing issues to the mainstream. yeah. I I always wondered, when will exams become something, you know cool to talk about. We यार haven't मतलब had पीएम ने discussions 3 on रील्स बना दी एजुकेशन के ऊपर, किसने सोचा था पीएम रात के 12 बजे रील्स बनाएँगे एजुकेशन पर? education को forefront में ले आया. I think that's one of the best things that has happened. And it's all thanks to a lot of people who've, ignored the compulsions that most mainstream media has, accepted it as normal. So support those people, definitely support News Laundry. We covered this from day one. We tried to bring you as many voices as possible, be as fair as possible, without taking any sides, showing all aspects of this protest site, and the movement. So please support News Laundry. And Abhijit, we'll keep seeing you, and hopefully we can catch you in real time. डेफिनिटली. You're a big introvert, and your friends have said that all you want to do is just be in your room by yourself. या या आई एम So if ट्राइंग you, दैट बट माय पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग मी, दे आर लाइक 4 लोगों से मिल. there were those memes also. Ki it's so bad ki introverts are here, Jantar Mantar mein. एग्जैक्टली. So thank you so much for taking all the time, and hope to keep catching up with you. डेफिनिटली यार, डेफिनिटली. Bye. बाय बाय. Best of luck.